Hello students, very good morning to all of you. Students of class 2nd, dears, how are you all? I think all are fine. Okay students, so now I am here with the English course book. So all of you take out your English course book and open the today's page number 74. And let me remind you about the chapter's name. Chapter name, Amina and her room is going on. Okay, which is your chapter 6. Okay, students, I think you all have completed your studies exercises, which was question answer. Okay, let's try 3 questions and 2 questions with answers were there now on the board. I hope you all have done. Okay, so those who have not completed, today they will complete anyhow. Okay students, now we will start the today's exercise worksheet. And today we have to read about the phonics. Phonics, I told you about the phonics earlier, and also we have read about so many phonics. Means in the phonics exercise we read about the word of the sound, different sounds words. Okay, and in the phonics exercise our topic we have today's work silent letters. Means today we are going to read about the letters of silent. Means जो भी आपके जो लेटर होते हैं, जब वर्ड्स आपके जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स में जो लेटर साइलेंट होते हैं, ठीक है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आर यू रेडी फॉर टुडेज वर्कशीट? ओके, स्टार्ट. सी देयर इज अ बॉक्स. इन दिस बॉक्स they are describing about the silent letters. When you do not hear the sound of a letter in a word, means जब आप एक वर्ड में किसी भी लेटर का साउंड हेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, ठीक है ना, लिसन नहीं कर पाते हैं, यू कॉल इट अ साइलेंट लेटर. तो ऐसे लेटर्स को हम साइलेंट लेटर कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, सी देयर, for examples, K, before and in no. Students, you have this word no. No word आपके पास है. Spelling of this no, K-N-O-W. But what type of pronunciation we are making? किस तरह की प्रोनाउंस हो रही है? क्या हम इसको नो रीड कर रहे हैं? No. We are reading, we are making the pronounce like no. मीन्स ये आपका जो के लेटर है स्टार्टिंग का, ओके, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम साइलेंट कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स इसकी प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं. दैट मीन्स ये आपका साइलेंट लेटर हो रहा है. एंड ओनली वी आर मेकिंग द प्रोनाउंस ऑफ NOW. ओके, नो. क्लियर? तो क्या है आपका साइलेंट लेटर इस वर्ड में? के विल बी योर साइलेंट लेटर इन दिस नो वर्ड. क्लियर? Okay, now next we have, next word we have knife. What's the next word? Knife. ठीक है, नाइफ है ना. तो देखिए स्पेलिंग, देखिए नाइफ की स्पेलिंग है KNIFE, बट प्रोनाउंस क्या हो रही है, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रही है? के आपका जो लेटर है वो साइलेंट हो रहा है. हम नाइफ नहीं रीड कर रहे हैं, ओनली नाइफ रीड कर रहे हैं. मीन्स के साइलेंट लेटर हो रहा है. एंड जी बिफोर इन नेट. ओके, एंड इन दिस नेस. ये जो आपका है नेक्स्ट लेटर नेट, जो बिफोर जो फर्स्ट लेटर आपका है जी, उसकी प्रोनाउंस नहीं हो रही है, नेट हो रही है. सेकंड नेस. ओके, और जो फर्स्ट लेटर है उसकी प्रोनाउंस नहीं हो रही है. मीन्स दीज आर योर साइलेंट लेटर इन दिस वर्ड्स, इन नो, नाइफ, नेट एंड नेस. क्लियर? ओके, इट्स टाइम टू मूव टू द एक्सरसाइजेस. सो मूव देयर ऑन पेज नंबर 75. पेज नंबर 75. See there? Okay, start now. Silent key. Silent key means in this silent letter a phonic exercise. Today we have the topic about silent K letters. Start to understand this. Some letters make no sound at all when they sit next to another letter.
For example, K before in it. Some letters make no sound. कुछ letters ऐसे होते हैं जो sound नहीं बनाते हैं, okay, at all. When they sit next to another letter, जब वो another letter के साथ add होते हैं तो वो sound नहीं बनाते हैं. जैसे कि example के लिए आपके पास है K before in it. इसको देखिए, KNIT. That's written KNIT knit, but the correct pronounce will be of this word knit. क्या होगी pronunciation? knit. ठीक है, तो K जो आपका होगा वो साइलेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका K साइलेंट लेटर है. नेक्स्ट है यू सी द लेटर K बट डोंट से इफ इट इज सिटिंग नेक्स्ट टू N. लेट मी शो यू. यू सी, यहाँ देखिए, you see the letter K but don't say it if it's sitting next to N. Some more examples are knob, no, okay, knife. These are letters that you can see but don't say. These are silent letter. These are the letters that you can see. Students, आप इन सारे letters को देख सकते हैं अपने words में, okay, but don't say. बट आपको इनकी प्रोनाउंस नहीं करनी है. ठीक है, दीज आर साइलेंट लेटर और ये सारे आपके साइलेंट लेटर्स हैं. क्लियर? ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई 4. द लेटर्स K A silent in the words given below. Read them aloud and use them to complete the sentences. What has been done for you? क्या है? The letter K is silent. यहाँ पे जो भी आपके वर्ड्स दिए गए हैं इस बॉक्स में, you can see these all the letters are started from the same letter, means K letter, okay, and these all the letters are just silent letter in each and every words. Read them aloud. First of all, you have to just make the loud pronounce of these and use them to complete the sentences. उसके बाद आप इन सारे words को use करेंगे sentences को complete करने में. Okay, so start to see. The words are given from the K letter. फर्स्ट देखिए, सबके जो K है ना, सारे वर्ड्स के K साइलेंट होंगे. फर्स्ट नी, सेकेंड नो, थर्ड नॉब, नॉट, निट, नाइट, नॉक एंड नाइफ. ओके, ईच एंड एवरी in each and every words K is going to be silence. So start to fill it also. Complete this incomplete sentence. In first, do you, where the art room is. Do you, which word will be in this? Do you know. कौन सा वर्ड रहेगा? Do you know. क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं where is the art room is? आर्ट रूम कहाँ है? नेक्स्ट है turn the, नेक्स्ट है turn the knob, okay, to open the door. You have to turn the knob for opening the door. नेक्स्ट आपका है she cut the tomato with which thing? With knife. दिस ऑल दी वर्ड्स आर इन दिस बॉक्स. देखिए, सारे वर्ड्स आपके इस बॉक्स में हैं. ठीक है, इसी की हेल्प से कंप्लीट करना है. इन फर्स्ट यू फिल नो, इन सेकेंड नो, थर्ड नाइफ. नेक्स्ट, वी हर्ड अ लाउड नॉक ऑन दी डोर. मीन्स हम लोगों ने एक लाउड नॉक सुना. वेयर? ऑन दी डोर, डोर पे. सेकेंड, आउच, आई हर्ट माई नी. ओके, आई हर्ट माई नी, मुझे अपने नी पे हर्ट हुआ है. नेक्स्ट, ग्रैंडपा विल निट मी अ स्वेटर. ग्रैंडपा क्या करेंगी? एक मेरे लिए स्वेटर निट करेंगी, मीन्स बुनाई करेंगी, बुनेंगी. नेक्स्ट, द रोप हैड अ नॉट. द रोप हैड अ नॉट. नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ ब्रेव नाइट. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ ब्रेव नाइट. ओके स्टूडेंट्स, so these all are your words, okay, from K letters, K silent letter. The pronouns of these knee, no, knob, not, knit, night, knob, knife. And students, whatever words are filled here, ठीक है ना, जो भी words fill किए गए हैं, आप क्या करेंगे? इन सारे words की हिंदी मीनिंग की मीनिंग को इनके जस्ट क्या करेंगे? इनके जस्ट बिसाइड में, इनके नेक्स्ट पे आप इनके हिंदी मीनिंग को राइट कर लेंगे. ओके, देन यू कैन अंडरस्टैंड द sentences very well. Clear? Now after that we have the silent B. The silent B letter means earlier there was about
द साइलेंट के लेटर। एंड अब आपका जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेटर जो कि नेक्स्ट साइलेंट लेटर कौन सा है, बी। द लेटर बी इज साइलेंट व्हेन इट सिट्स नेक्स्ट टू द लेटर्स एम आर टी। मीन्स लेटर जो बी है वो साइलेंस है जब ये क्या होता है, नेक्स्ट किसी नेक्स्ट लेटर, किसी दूसरे लेटर जो कि एम आर टी के साथ क्या होता है, एम आर टी के साथ आपका एम आर जो टी है उसके साथ ये ऐड होता है। सो यू सी इट, आप देख सकते हैं। बट डोंट से इन दी वर्ड्स लाइक थम। बट देखिए ये जो बी लेटर है वो आपके वर्ड में रहेगा, बट आपको उस बी लेटर की प्रोनाउंस नहीं करनी है। ओके, उसकी प्रोनाउंस नहीं करनी है। एग्जाम्पल्स आपके पास है थम। ओके, सो स्पेलिंग ऑफ दिस THUMB। देखिए लास्ट में आपका क्या है, बी लेटर है। ओके, लास्ट में क्या है, बी लेटर है ना, तो क्या होगा आपका ये एम के साथ है ना, एम लेटर के साथ है, तो जो लास्ट का बी लेटर है वो आपका साइलेंस हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे थम्ब, इट विल बी योर थम, बी विल बी साइलेंट, क्या होगा थम। नेक्स्ट आपका वर्ड है क्लाइंब। लिखा क्या है, रिटन क्या है क्लाइंब, बट इसकी जो प्रोनाउंस होगी बी आपका साइलेंट हो जाएगा क्योंकि इसके पहले आपका एम लेटर है। क्लियर, तो ये आपका लेटर हो जाएगा क्लाइंब। ओके, let's keep to be in silent and the word will be what, thumb, climb. Don't call it to be, don't make pronounce of b, climb. next है numb, क्या है numb। और next आपका है कम नहीं होगा, कम, b will be silent, b की pronounce नहीं करेंगे। why, because they all are with m letter। ठीक है, next t के साथ भी नहीं pronounce करते हैं ना b की। You also don't say are here the be in depth, doubt and subtle. You also don't say are here be। इसमें भी आपको जब आपके वर्ड के साथ टी लेटर है एट लास्ट पे, तो वहाँ पे भी हम बी की प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, स्पेलिंग देखिए DBT है। ठीक है, तो बी की प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आपका हो जाएगा डेट, या आपका हो जाएगा डाउट, या आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा सटल, सबटल। Clear? Okay students, so these are your today's silence letters of K and B. I hope students you are understanding today's phonic exercises. So if you are understanding, let's try to complete these in your book and write down the meaning of these words. Okay, and try to do the practice, okay, at your home for the next exercises which are given on the next page. So let's complete that. Next day again we will meet with the next exercises. So students, now thank you. Have a nice day.